Assalamu alaikum, dear all students of class 7th. This is your teacher Miss Saniyat, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. As you all know, I teach you English A. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately by unfavorable condition did not allow us to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without any break. So welcome to online system. So take out your books, Oxford Reading Circle, 2nd edition of your class 7, and open page number 71. In our previous session, we have learned till here, between us cannot be removed. First of all, let me tell you about the short explanation of the previous chapter. In our last sessions, we have understood the explanation of unit My Big Brother. In this story, there were two brothers. I am giving you a short review about the previous explanation that there were two brothers. The elder one was very studious and the younger one was not so studious. He likes to spend his time in other activities, while the younger brother was always seated with open book, and he was 3 grades ahead of him. That's why he scolds every time to his younger brother. By fulfilling the right of seniority. At once, in final exams, the younger brother failed in his exams, by which only 2-year difference was left behind them, through which the younger brother taunts him every time. And it was second time when the final examinations observed, the elder brother failed again. After this, at one day elder brother was returning from market to home. He steamed his brother by playing after a 5 rupee kite and scolded him again that, have you forgotten that you are not in a low grade anymore? After it, the younger one said, I am just 1 grade behind, so you don't have any right to say anything to me. Then the elder one said, I am 5 years older than you, and that difference between us cannot be removed. जब एक दफ़ा बड़ा भाई जो होता है वो मार्केट से घर की तरफ रवाना होता है, तो वो अपने छोटे भाई को एक जगह खेलता हुआ देखता है, जो कि वो वहाँ पर काइट्स उड़ाने में मगन होता है। वो जब इस सिचुएशन में अपने छोटे भाई को देखता है तो वो उसको डांटता है, उसका हाथ पकड़ के उसको घर ले जा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम अब एक छोटी क्लास में, मतलब लो ग्रेड में नहीं हो, तुम्हें अब और ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो उस पर छोटा भाई जो है वो जवाब देता है, आई एम जस्ट 1 ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान 3 ग्रेड्स का जो है वो डिफरेंस था, मतलब कि वो अगर 6 क्लास में था तो वो 9 क्लास में था बड़ा भाई। तो इस तरीके से जब उसका बड़ा भाई 2 टाइम्स जो है वो फेल हो गया था, इस तरीके से 2 टाइम्स फेल होने के बाद अब उन दोनों के दरमियान सिर्फ 1 ग्रेड का जो है वो फर्क बाकी रह गया था। तो छोटा भाई कहता है, आई एम जस्ट 1 ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर, सो नाउ यू डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग टू मी। तो अब तुम्हारे पास मुझे डांटने का कोई हक नहीं रहता। बट यू आर मिस्टेकन। इस पे बड़ा भाई कहता है कि तुम गलती पे हो, तुम गलती कर रहे हो। आई एम 5 years older than you, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड दैट डिफरेंस बिटवीन अस कैन नॉट बी रिमूव्ड, और ये जो डिफरेंस है हमारे बीच ये कोई भी इंसान नहीं मिटा सकता। नाउ आई एम रीडिंग
onwards, the experience I have of life you can never catch up with. जो एक्सपीरियंस मुझे अपनी ज़िंदगी का है, इन मतलब कि जो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और इन सालों के साथ साथ जिस तरीके से मुझे ज़िंदगी का तजर्बा है वो तुम अभी हासिल नहीं कर सकते. Even if you get an MA and a PhD, यहाँ तक कि तुम चाहे MA या PhD ही क्यों ना कर लो, लेकिन जो हमारे बीच 5 साल का डिफरेंस है वो नहीं मिट सकता. Understanding does not come from reading books. Our mother never passed any grade and dad probably never went beyond the 5th. But even if we studied the wisdom of the whole world, mother and father would always have the right to explain to us and correct us. और वो यहाँ पर अपने माँ बाप की एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि हमारी जो मदर है उन्होंने कोई ग्रेड पास नहीं किया और हमारे डैड जो हैं उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ा है, उससे आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं किया. और यहाँ तक कि अगर हम पूरी दुनिया की भी तालीम हासिल कर लें, लेकिन मदर और फादर जो है वो उनके पास हमेशा ये हक उनको हासिल रहेगा कि वो हमें डांट सकें और हम अगर गलती पे हों तो हमें वो करेक्ट कर सकें. नॉट जस्ट बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स बट बिकॉज दे विल ऑलवेज हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. ना सिर्फ इसलिए कि वो हमारे पेरेंट्स हैं बल्कि इसलिए कि उनके पास ज़िंदगी का ज़्यादा तजर्बा है बनिस्बत हमारे. Maybe they don't know what kind of government they have got in America or how many consolations there are, but there are 1,000 things they know more about than you or me. और वो इस बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उनको चाहे ये भी ना पता हो कि किस किस्म की जो है गवर्नमेंट अमेरिका में है, लेकिन वहाँ पर इसी के साथ साथ उनको ऐसी 1000 मतलब हज़ारों बातों का इल्म होता है उनके तजर्बे के लिहाज से, जो कि वो मुझसे और तुमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं. So brother, don't be so proud of having almost caught up with me and being independent now. I'll see you that. Don't go off the track. If you don't mind, then वो अपने भाई को यहाँ पर ये तमाम बातें समझाते हुए कहता है कि चाहे हमारे माँ बाप जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी माँ जो है उन्होंने कोई भी ग्रेड पास नहीं किया और हमारे फादर जो हैं उन्होंने 5th क्लास से आगे नहीं पढ़ा, लेकिन उनको फिर भी ज़िंदगी का तजर्बा हमसे ज़्यादा है. चाहे तुम MA या PhD भी क्यों ना कर लो, लेकिन जो डिफरेंस तुम्हारे और मेरे बीच है वो अपने छोटे भाई से यहाँ पे जो है मुखातब होते हुए कहता है, जो डिफरेंस तुम्हारे और मेरे बीच में है 5 साल का वो नहीं मिट सकता, चाहे तुम PhD और MA ही क्यों ना कर लो. और जो एक्सपीरियंस हमारे माँ बाप के पास है, चाहे उन्होंने कोई ग्रेड पास नहीं किया, और जो एक्सपीरियंस वो लेकर बैठे हुए हैं दुनिया का, वो तुम्हारे और मेरे पास नहीं हो सकता. चाहे हम पूरी दुनिया की तालीम ही क्यों ना हासिल कर लें, हम अच्छी से अच्छी तालीम क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमारे माँ बाप के पास है वो हमें अभी हासिल नहीं हो सकता. और इसी एक्सपीरियंस के लिहाज से उनके पास उनको ये बिल्कुल हक है कि वो हमें डांट सकते हैं और हम अगर गलती पे हों तो हमें करेक्ट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझसे 2 ग्रेड्स जो है क्लियर करते हुए मुझसे अब 1 ग्रेड पीछे हो, तो तुम अब इस बात को लेके ज़्यादा प्राउड फील ना करो. तुम इंडिपेंडेंट तो हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अब ट्रैक से जाता हुआ उतरता हुआ ना देखूं, मतलब कि तुम सीधे रास्ते पर ही चलो. Then showing me his fist, I can use this too. मतलब कि वो by showing his fist का मतलब है कि वो यहाँ पर अपने बड़े भाई का एक्शन एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अपना पंच इस्तेमाल करते हुए अपना मुक्का उसके हाथ पर टच करते हुए कहता है कि ये ट्रैक पढ़ना मैं भी यूज़ कर सकता हूँ. आई नो यू डोंट लाइक हेयरिंग ऑल दिस. मुझे ये पता है कि तुम्हें ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा. आई वॉज थॉरली अशेम्ड बाय दिस न्यू अप्रोच ऑफ हिज. और मैं जो हूँ वो जो छोटा भाई है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं उसकी इस न्यू अप्रोच से जो है वो काफ़ी शर्मिंदा हो गया. आई हैड ट्रूली कम टू नो माई ओन इनसिग्निफिकेंस. और अब यहाँ पर जाके उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है. एंड अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन माई हार्ट. और इसके बाद उसके दिल में अपने भाई के लिए
एक इज्जत का मकाम पैदा हो जाता है। विथ टीयर्स इन माई आईज आई सेड, और उसने जो छोटा भाई था उसने रोते हुए मतलब के आंखों में आंसू लाते हुए कहा, आई सेड नो नो व्हाट यू से इज कम्प्लीटली ट्रू एंड यू हैव द राइट टू से इट। जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल ठीक था, एंड यू हैव अ राइट टू से इट, और तुम्हारे पास बिल्कुल, अपने भाई को कहता है कि आपके पास जो है बिल्कुल ये हक आपको हासिल है कि आप मुझे जो है वो गाइड करें। नाउ माई ब्रदर एम्ब्रेस्ड मी एंड सेड, मतलब कि अब वो ये कहता है कि मेरे भाई ने मुझे गले लगाया और कहा, आई डोंट फॉरबिड यू टू फ्लाई काइट्स। फॉरबिड मीन्स कि वो यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा काइट्स फ्लाई करने के लिए। आई वुड लाइक टू बट व्हाट कैन आई डू, मैं भी जो हूँ वो मुझे भी पसंद है ये काइट्स फ्लाई करना, लेकिन मैं क्या करूँ? If I go off the track myself, then how can I watch out for you? अगर मैं भी अपने ट्रैक से उधर जाऊँ, मतलब कि मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते पर चलता रहूँ जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, तुम सारा वक्त जो है वो खेलने में गुजारते हो, काइट्स फ्लाई करने में गुजारते हो, अगर मैं भी इस रास्ते को इख्तियार करूँ तो मैं तुम पर नज़र किस तरीके से रख सकूँगा। डेट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें वॉच आउट करूँ, मैं तुम पर अपनी नज़र रखूँ, निगाह रखूँ। Just then a kite that had been cut loose passed over us with its string dangling down. और इस तरीके से जो है वो ये बताता है कि इन बातों में वो जो उसके हाथ में पतंग थी वो उसके हाथ से छूट जाती है और कट होके लूज होकर वहाँ से उसका स्ट्रिंग, उसकी जो तार होता है वो कट जाता है और उसकी काइट जो है वो गिर जाती है। A crowd of boys were chasing after it. और वहाँ पर जो एक क्राउड था, एक मजमा था लड़कों का, वो पतंग उड़ाने में जो है वो मशगूल ही था, मतलब मसरूफ ही था। My brother is very tall, और यहाँ पर वो ये बताता है कि मेरा भाई जो है वो मुझसे काफ़ी लंबा था। Leaping up, he caught hold of the string, और वो ये बताता है कि मेरा भाई जो है वो काफ़ी लंबा था और उसने लीपिंग अप कहते हैं कि छलांग लगाना, कूदने को कहते हैं। लीपिंग अप ही कॉल्ड होल्ड ऑफ द स्ट्रिंग, और उसने उछल कर जो है वो जो स्ट्रिंग थी, काइट की जो डोर थी, उसने उसको पकड़ा एंड रैन एट टॉप स्पीड टुवर्ड्स द हॉस्टल एंड आई रैन क्लोज बिहाइंड हिम, और जो है वो टॉप स्पीड के साथ जो है उसने हॉस्टल की तरफ भागना शुरू किया और मैं भी भागता हुआ उसके पीछे चला गया। So students, here we have completed our explanation here. I hope that you all have understood this chapter. So students, we have learned that in this story there were two brothers, in which the elder one was very studious and the younger one was not so studious. He likes to spend all his time in other activities, while the younger one was always seated with open book, and he was 3 grades ahead of him. इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि इसमें 2 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और जो बड़ा भाई होता है वो बाय नेचर बहुत जो है वो स्टडीज होता है, मतलब कि इल्म हासिल करने में वो काफ़ी दिलचस्पी रखता है, और जबकि छोटा वाला जो भाई होता है वो ही वॉज नॉट सो वेरी स्टडीज, वो जो है वो उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, और जो बड़ा भाई होता है वो हर वक्त अपना जो है वो किस तरीके से गुजारता है, वो अपने सामने हर वक्त अपने मुंह के सामने किताब खोले लिए बैठा रहता है, और जबकि छोटा भाई जो है वो उसको बाकी पढ़ाई के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ थी लाइक खेल कूद में जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता था, और जो बड़ा भाई होता है वो उससे 3 ग्रेड्स अहेड होता है, मतलब कि 3 ग्रेड्स जो है वो 3 क्लासेस आगे होता है उससे, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्स हिम एवरी टाइम, और जो है वो जब भी अपने छोटे भाई को बाकी एक्टिविटीज़ करते हुए देखता है पढ़ाई के अलावा, तो वो उसको डांटता भी है, अपने बड़े होने के हक से उसको समझाता है और डांटता भी है। At once, in final exams, the younger brother failed in his exams, by which only 2-year difference was left behind them.
और एक बार क्या होता है कि उन दोनों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं जिसमें बड़ा भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टडीज होता है वो फेल हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है उन दोनों के दरमियान सिर्फ अब 2 क्लासेस का डिफरेंस रहता है, जबकि वो उसका भाई उससे 3 क्लासेस आगे होता है। लेकिन जब एक बार फाइनल एग्जाम्स में उसका बड़ा भाई फेल हो जाता है तो इस तरीके से उन दोनों के दरमियान सिर्फ 2 साल का फर्क बाकी रह जाता है। Through which the younger brother taunts him every time, जिसकी वजह से जो छोटा भाई होता है उसको काफ़ी ताने दे रहा होता है कि अब तो तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ 2 साल का फर्क रह गया है। And it was the final term again, and its second time the younger brother failed again. और अब ये दूसरी बार ऐसा होता है कि उन दोनों के एग्जाम्स जो हैं वो ऑब्जर्व होते हैं और उसमें जो बड़ा भाई होता है वो वापस से फेल हो जाता है और छोटा भाई क्लियर कर जाता है। क्या होता है कि अब इस फेल होने की वजह से उन दोनों के दरमियान सिर्फ 1 साल का फर्क जो है वो बाकी रह जाता है, और ये न्यूज़ सुनकर जो है वो बड़ा भाई जो है वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। एंड आफ्टर इट एट वन डे द एल्डर ब्रदर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट टू होम। एक दिन इस रिजल्ट आने के बाद एक दिन ये होता है कि जो बड़ा भाई होता है वो मार्केट से वापस घर आ रहा होता है। He seemed his brother by playing after a 5 rupee kite and scolded him again. तो उसका भाई छोटा भाई जो होता है वो एक 5 रुपए की काइट के पीछे भाग रहा होता है, उसको उड़ा रहा होता है, उसको उड़ाने में मगन होता है। और जब उसका भाई उसको ये देखता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको वापस ले जा रहा होता है, उसको खूब डांटता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ग्रेड जो है वो अब जो है वो लो ग्रेड में तुम नहीं हो, तुम एक हाई ग्रेड में हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। On which the younger one say, you have assumed that I am just 1 grade back to you and now you don't have any right to scold me. तो उस पे इसका भाई जो है छोटा भाई जो है वो जवाब देता है कि तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि अब मैं तुमसे सिर्फ 1 ग्रेड जो है वो तुमसे पीछे हूँ और अब तुम्हारे पास सीनियरिटी का तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे इस तरीके से डांट सको। After watching this attitude, the younger one say, if you get MA or PhD degree, but the difference between us, which is 5 years, would not be removed on any condition. अपने छोटे भाई का जो है वो बिहेवियर देख के जब उसका छोटा भाई उसको ये सब कह रहा होता है, उसके बाद जो बड़ा भाई ये कहता है कि चाहे तुम MA या PhD की डिग्री भी हासिल कर लो, लेकिन जो 5 साल का डिफरेंस हमारे बीच है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, वो कोई भी नहीं मिटा सकता। और इन 5 साल जो मैं तुमसे बड़ा हूँ, इन 5 सालों की वजह से जो ज़िंदगी का तजर्बा मुझे है वो तुम्हें हासिल नहीं हो सकता। इसलिए जो डिफरेंस हमारे बीच है वो कभी नहीं मिट सकता, चाहे तुम MA या PhD ही क्यों ना कर लो। So students, here you have seen that how younger brother answered his elder brother, and it was really disappointed because we should not behave with our elders like that. यहाँ आप सबने देखा कि किस तरीके से जो छोटे भाई ने अपने भाई के साथ बिहेव करा, किस तरीके से उसकी बातों का जवाब दिया और उसके बड़े भाई ने उसको उसके जवाब में क्या कहा। और ये जवाब सुनकर जो है वो छोटा भाई जो है वो काफ़ी शर्मिंदा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका भाई ये कहता है उसको कि मुझे भी पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं भी अपने ट्रैक से उतर जाऊं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी करेगा, जो कि मुझे तुम्हें संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो कौन पूरी करेगा। तो इस पे इसके छोटा भाई जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाता है, जिसके बाद उसके दिल में अपने भाई की इज्जत और मकाम और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसका भाई उसको गले लगा लेता है। और चूंकि उसका भाई उससे लंबा होता है तो वो उस पतंग की डोर को हाथ में लेते हुए भागता है और उसका छोटा भाई भी उसके पीछे हॉस्टल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। So students, here we have completed our explanation of unit My Big Brother. I hope that you all have understood this unit very well, and after this explanation we will move towards an exercise which is on page number 73, and I hope that you all have done all the words to know in your copies
First of all, you all have to make a title page in copies of month of August. Then you all will make a title page of unit My Big Brother. And after making all these two title pages, you all will make a margin, put date, and first of all you all will do all the words to know which are on पेज नंबर 65 to 70. पेज नंबर 65 से 70 तक जितने भी वर्ड्स टू नो हैं वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं. एंड आफ्टर इट यू ऑल विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज बी which I will send you on your groups. So students, now the time of the today's session has been ended here. If you have any query related to English A, then you can ask me in your query time. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.